الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے ابتدا جو بہت زیادہ مہربان اور رحیم ہے. سورہ 3 کی تلاوت کی جو مکی ہے جس میں آیات 8 ہیں اور رکوع 1 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں قسم کھاتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی. وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھی صورت سیرت اور بہت خوب تر بنا ہے. تمام مخلوقات ایک جگہ ہیں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اس کو نیچے سے. یعنی کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، وہ اسفل سافلین، وہ نیچے سے نیچے گرتا رہتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے اس کا بڑا اجر ہے، اور جو جھٹلاتا ہے اس کا بھی معاملہ ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر. یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاکم سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے گا اللہ سارے حاکموں سے بہتر ہے. وہ پالنے والا ہے، وہ خیال کرنے والا ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے دل میں یہ آیت سینے میں اس کے نقش ہونا چاہیے، الیس اللہ بحاکم الحاکمین. اس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم رحمانی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتوار کا دن 18 جون 2017، 22 رمضان 1438 ہجری. آج ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فائنل کھیلا جا رہا ہے. ٹاس ہندوستان نے جیتا اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ بیٹنگ کریں گے اور وہ فیلڈنگ کریں گے. تو اب تک کی جو سچویشن رہی ہے وہ آپ کو گاہے بگاہے ہم ضرور آگاہ کرتے رہیں گے، بلکہ انفیکٹ ہم خود بھی آپ کے ساتھ میچ میں ہی رہیں گے کیونکہ آج کا دن ہی بہت زیادہ وہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہمارے کھلاڑیوں کو طاقت عطا فرمائے. آمین آمین. آج تو ساری ٹیم جو ہے نا وہ مطلب کسی کا دل ہی نہیں لگ رہا نا کہ ہم کچھ بھی اور کریں سوائے میچ دیکھنے کے. ٹرانسمیشن بھی نہ کریں، کچھ نہ کریں، بس روزہ جن کا ہے ماشاءاللہ رہے اور افطار کریں گے اور ساتھ ساتھ میچ دیکھتے رہیں گے. تو آج تو مطلب آج ماحول ہی کچھ اور ہے. آج دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا ہے. ان تمام لوگوں کو جو فادرز ڈے صرف آج کے دن ہی مناتے ہیں ان کو آج کے دن ہی مبارکباد. ہم جیسے لوگ جو روز مناتے ہیں ہم لوگوں کو روز مبارکباد. جزاک اللہ خیر. اسلام کا مزاج آپ جی آپ نے بات کی، اسلام کا مزاج. جزاک اللہ خیر. کیونکہ والدین تو ہوتے ہی اتنی پیاری چیز ہیں
اور سب کو بہت زیادہ فادرز ڈے مبارک. روز روز میں آج کے دن اپنے والد کو یاد کروں تو پھر میری ابھی بات کرتے ہوئے یہی بات ہو رہی تھی اکبر بھائی سے کہ ہم لوگ مطلب جب بھی فادرز ڈے آتا ہے تو سہیل بھائی بھی میں بھی ہم لوگ جتنے جن کے والد ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں یا قبل ہم سمجھتے ہیں وقت سے پہلے چلے گئے یا اب وقت ضرورت تھی ان کی, تو اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہم خالی ایک دن کیوں منائیں, کیونکہ ہماری والداؤں نے باپ بن کر ہمیں پالا اور باپ بن کر ہماری تربیت کی. تو میں کہوں گی کہ ہماری والداؤں کو بھی فادرز ڈے, شری آپ کی اماں کو بھی, میری اماں کو بھی, تمام ان والداؤں کو جو فادرز ڈے ان کے لیے ہم کہتے ہیں ان کو ہم وش کرتے ہیں آج کے دن. کے والد نہیں ہوتے نا آپ ہی, وہ صبح شام یاد کرتے ہیں. میرے والد نہیں ہے تو میں صبح شام ان کو یاد کرتا ہوں, صبح شام یاد کرتا ہوں. مطلب جب اٹھتا ہوں تو میں میری عادت تھی میں السلام علیکم ابا کہتا تھا, اور ابا مجھے دعائیں دیتے تھے, کیونکہ حدیث رسول ہے کہ جو اپنے والد و والدہ کو دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور والد کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. والد کی دعا کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے والد سے دعا کرانی چاہیے. حدیث ہے کہ والد سے دعا کرانی چاہیے, اگر والد نہ ہو تو بڑے بھائی سے, غالباً میں نے ایسا سنا ہے. اور بس یہی ہے رشتے ہیں. اکبر بھائی کی بھی والد کو چند سال ہوئے, انتقال فرمائے. آپ سب لوگوں کو پروردگار ہم سب کو پروردگار صبر دے. آگے لے کے چلتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو. تھوڑی دیر بعد ہمارے انشاءاللہ وظائف ہوں گے. رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن میں آج علی بھابی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا, ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں, اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا, ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. خدمت آج آگے لے کے چلتے ہیں. عبادت ایسی کرو کہ تمہاری روح کو مزہ آ جائے, کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا کام آئے گی. کہتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھی کہ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا مگر وقت کو بدلنے میں زندگی گزر جائے. بالکل ایسے. تو بس آپ سب لوگوں کو آج کا دن کہیں گے کہ آج کا یہ وقت پروردگار ہم سب کے لیے لکی رکھے, اور ہماری پاکستانی ٹیم جو ہے وہ جیت کر ٹرافی پاکستان گھر واپس لے کر آئے, پوری امید ہے. اور جگہ جگہ پتہ نہیں میں نے سنا ٹویٹر پہ یا پتہ نہیں کہاں پر کچھ بالی ووڈ سٹار رکھنے والے کچھ سٹارز ہیں, انہوں نے بڑی ایسی باتیں کی ہیں جو میں بولوں تو ایسے اچھی بات نہیں ہوگی. کہتے ہیں برائی کو نہیں پھیلانا چاہیے, اچھی چیزیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو انگریزی کم آتی ہے اور وہ اس کا کرائٹیریا ہے جیتنے کا, تو میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی بھی صداقت ہے. لیکن I wish and we all wish پاکستانی کرکٹ ٹیم all the very best, bring the trophy home. اور حاضر ہوتے ہیں. ہم نے 92 میں ان کو ہرایا تھا جو انگلش بولتے تھے. آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. ہم نے 92 میں ان کو ہرایا تھا کہ جو جن کی زبان انگلش. 54 نو لاس نا, 54 رنز, اور ابھی تک کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوا. تو اب بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم مدیحہ. ہاں وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے بہت مس کیا, میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا. لیکن بس ایسا ہے کہ کل کو اتنا ایک الگ ہی چندہ ماحول ہوتا ہے, ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. بٹ یاد آپ آ رہی تھیں, دعاؤں میں آپ تھیں, ہم یہ بھی یاد کر رہے تھے. لیکن ماشاءاللہ مہمان کل بہت تھے ماشاءاللہ. کل جو ہے بہت سارے لوگوں سے ملنا بھی ہوا. آپ نے دیکھی ٹرانسمیشن؟ جی. آپ گھر میں دعائیں کر رہی تھیں؟ بالکل بالکل. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اچھا یہ بتائیے آج آپ کیا بنا رہی ہیں میزان کے کچن میں؟ سینڈوچز بنا رہی ہوں. ہاں, کلب سینڈوچز, اوکے, پکوڑے, اور نارمل شہبز ہم روز بناتے ہیں. اچھا نارمل شہبز ہم روز بناتے ہیں. اچھا وہ دودھ کے ساتھ بھی بنا رہی ہیں آپ, پلین بھی بنا رہی ہیں؟ بالکل. ویری گڈ, ٹھیک ہے. حضرت آپ کون سی افطاری ہمارے ساتھ کریں گے, ہمیں پہلے سے بتا دیں تاکہ اس دن ہم تھوڑا سا اور اسپیشل آپ کے ہونے کی خوشی میں اور رکھیں. ایک دو دن میں بتا دوں گا آپ کو. بلکہ آج مسعودی بھائی بھی آ رہے ہیں. جی جی. تو میں آپ دونوں سے ٹائم لوں گی کہ جس دن آپ دونوں ہمارے ساتھ افطار کریں. بالکل ٹھیک ہے نا, اس دن تو بہت خوشی ہوگی ہمیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کریں گے. خواتین و حضرات اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور شیف مدیحہ آج میزان کی کچن میں جو ہے بنانے والی ہیں پکوڑے, کلب سینڈوچز اور شربت. اچھا کچھ نیا بھی ہونا چاہیے ویسے, کچھ ڈفرینٹ, مطلب کچھ کریٹو ہونا. اگر میں چیلنج دے دوں تو ہاں دے دوں, کیونکہ یہ تو مطلب سرٹیفائیڈ ہے نا. میری اسٹیپ نہیں ہے نا میرے ساتھ. ہاں اسٹیپ نہیں ہے, یہ صحیح ہے ویسے. ویری گڈ, زبردست. اچھا کس کس نے آج گرین پہنا ہے؟
किस किस ने ग्रीन पहना हुआ है? कोई पाकिस्तानी, कितने कम लोग हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं. ये क्या बात हुई है? मैं तो कर रही हूँ. अच्छा, कल पहनेंगे ना, जीत जाएगा तो. हाँ ये सही है. पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जा सकते ना, अपना मुल्क है. दैट्स लाइक अंदर से नेचुरली प्यार आता है, चाहे अच्छा खेलें या बुरा खेलें, मुल्क अपना है, रिप्रेजेंट हमें कर रहे हैं. वेरी ट्रू, पूरी वेरी नेशन को. ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हमारी पहचान है. अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से मिला. इस बात को पता होना काफ़ी नहीं, इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है. रमज़ान इश्क नशियात को आगे लेके चलते हैं. सॉरी, मेरा खांस खांस के गला जो है ना बिल्कुल ही बैठ चुका है. अब हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद और इस ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं. हमारे साथ रहिए. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं. मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट. देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD. तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी. अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में. पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर. होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया. यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA. हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में. देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर. आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं. तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है. लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे. हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी. हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ. नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर. लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका. कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया. एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव
देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर।
होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? नहीं है डॉक्टर उम्मे राहील जो हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ लाइव ट्रीटमेंट्स आप लोगों के लिए करेंगी, बल्कि आप लोगों के लिए वाउचर्स भी होंगे। यहाँ पर लाइव एक से ज़ायद पता नहीं कितने और ट्रीटमेंट्स होंगी, जिसमें वाइटनिंग भी होगा, एक्ने भी होगा, आपके जो है वो ड्राई स्किन के लिए भी होगा, पीलिंग भी है, PRP भी है। PRP के लिए तो हम सारे बैठ जाएंगे। वेरी गुड। तो ये ट्रीटमेंट्स भी हैं। साथ में मुफ्ती नूर रहमानी साहब जो हैं, आपके जो वो चीज़ें जो बहुत ही आपको डेली में होती हैं, जैसे आपको एलर्जीज होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ होती है, उनकी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने भाई से कि कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें अगर आप दे दें तो फिर मैं आपकी तरफ से तोहफतन यहाँ पर मेहमान जो आए हुए हैं उनको देना चाहूँगी। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। देखिए मैं ऐलान करता हूँ कि जो खालिश शहद है और मैं लेके आऊँगा और यहाँ गिफ्ट के तौर पे आप दीजिएगा। क्या लेके आएंगे? खालिश शहद। खालिश शहद, अरे वाह जबरदस्त। पहले मैं कुछ और समझी लेकिन जवेरिया खालिश शहद, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। शहद के जो है ना वो लोग बहुत सारे उसमें कोई गुड़ का शीरा भी मिला के दे रहे होते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि इसका लो, इसका नहीं लो, इसका लो, इसका बड़ा मसला आता है। तो आप खालिश शहद देंगे तो ये तो बट मैं भी लेके जाऊंगी, मेरे लिए भी बिल्कुल भी। वो उसमें खालिश शहद में बहुत सारी बरकत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पेट की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो जिनके साथ मैदे की तकलीफ है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनको पाइल्स की बीमारी होती है वो शहद इस्तेमाल कर उनके लिए बहुत मुफीद है। साइनस फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। गले की तकलीफ होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा है। जिनको नज़ले की बीमारी, स्किन के लिए बहुत अच्छी। अरे मास्क लगता है शहद का स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन पूरा शहद मेरा मास्क में मत लगा दिएगा। खालिश शहद आया है, भाई ने दिया है, भाई की मोहब्बत अलग होगी, खालिश अलग लगा लो मुंह पे। छोटी मक्खी का जो शहद होता है वो खासा महंगा और खासा अच्छा होता है। हम लोग झील सैफुल मलूक गए थे और वहाँ से खासे चीट होकर आए थे। आपको पता है लोग वहाँ भी पहुंचे में, वहाँ उन्होंने 2 नंबर शहद इतनी कस्में खाकर भेजा। एक तरफ परियां थी झील सैफुल मलूक, अल्लाह ने क्या नज़ारा पाकिस्तान को अता किया। पीछे परियां और आगे झूठे हम लोग, जो हमें उन्होंने झूठ बोल बोल के देखो खालिश शहद का बहुत कम होता है कि पहला तो केस यही हो गया, तुम नंद को छोड़ के गई कैसे सैफुल मलूक? ख़वातीन और हज़रात आप देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त हमें एक भाभी ने बेचारी मासूम सी एक मिस्कीन सी एक नंद को अकेला छोड़ के झील सैफुल मलूक चली गई। आप बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ये कि मैं इनको आप खालिश शहद दूंगा। ठीक है, जवाब मैं तलब कर रही हूँ, शायद भी इनको सैफुल मलूक भी ये जाएं, छोड़ के भी नंद को ये जाएं, हैं सब कुछ नहीं दे दो, देओ तो दुआएं दो, दुआ करो तो मदद करो, कुछ कर सकते हो बहनों और बेटियों की कदम बढ़ाइए, नजर उठाइए, हिम्मत पकड़िए और आगे बढ़िए। भाभी आज 2 से 3 अनाउंसमेंट्स मैं आपकी इजाजत से करना चाहूंगी जिनका ताल्लुक सारे मंडी वेलफेयर ट्रस्ट से है। कुछ दिन कबल जो एक बहन आई थी हमारे पास जो अपने घर वालों को पुकार रही थी। क्या हमारे पास वो पैकेज है अली? आपने कहा था कि शायद वो गालिबन पैकेज होगा, बता दीजिएगा अगर है तो, नहीं तो हम जिक्र भी कर देते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, उनका नाम क्या? सदफ था उनका नाम गालिबन, जो अपने घर जाना चाह रही थी और टीचर थी और पढ़ी लिखी थी। जो नहीं, सदफ नाम नहीं उनका, अभी मेरे ज़हन अभी आ जाएगा जहन में। और कहानी ये थी कि उनके जो है वो हस्बैंड उनको जो है वो ज्यादती भी करते थे। फिर जो दूसरी शादी हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि तुमको मैं दुबई लेकर जाऊंगा और तुम मुझे कमा के दो, कोई कमाई का जरिया बनो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी
اور اس کے بعد ان کی تیسری شادی کرا دی گئی، جس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کے بچے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، اور وہ ہمارے آفس میں بھی آئے تھے ان کے تیسرے شوہر، اور وہاں آ کے بھی انہوں نے اسے دھمکی دی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور بھابھی جن کو گھر سے کال آ گیا تھا، جنہوں نے کہا تھا مجھے ماموں اور میری مامی بہت پیار کرتے تھے، وہ نادیہ ہیں۔ وہ نادیہ ہیں، ان کی کیا کہانی تھی؟ جن کو کال آ گیا تھا نا؟ نہیں، نادیہ کو کال، نادیہ کی فیملی کو ایک طرح سے پتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہیں، وہ میرے پاس سے کانٹیکٹ کرتی ہیں اپنی فیملی کو، ایشو یہ کہ کوئی لے جانا نہیں چاہتا۔ تو اب نادیہ کو تو 4-5 نمبر یاد ہیں، میں چاہتی ہوں کہ کوئی خاندان میں کوئی بھی محرم رشتہ جس کے علم میں نہیں ہو وہ میرے پاس آ کے کانٹیکٹ کرے، یا کوئی ایسا دوست احباب آ جائے جو اس کی فیملی کو تیار کرے کہ اس کو آ کر لے کر جائیں۔ اچھا اگر نہ لے کر جائیں تو میری تیسری خواہش جو بہت حالت مجبوری کی ہے کہ ایٹ لیسٹ آ کے اس سے مل لیں، گلے لگا کے خود بھی رو لیں، اس کو بھی دل ہلکا کر دیں، اور اس سے یہ کہیں کہ ہم ہر مہینے ملنے آئیں گے لیکن رہو تم عالیہ بھابھی کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہماری بہن جو ہمارے پاس 2 دن پہلے آئی تھی، ان کا کیا اسم گرامی؟ آپ آمنہ کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی آمنہ کی بات کر رہی ہیں، بالکل آمنہ کی جو پہلے آمنہ کا تو وہ کیس ہے کہ جس کی بیٹی ہم نے کورٹ سے اس کو دلا تو دی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے پاس رہ نہیں سکتی کہ شیلٹر میں اس کی بھی زندگی اور پھر بیٹی کی بھی زندگی۔ اور آج جو ہے وہ آمنہ کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اور آمنہ اپنی بیٹی کے ساتھ سالگرہ غالباً نہیں منا سکتی۔ ہم نے کوشش تو کی تھی لیکن مجھے بھابھی نے بتایا کہ انہوں نے منع کر دیا ہے غالباً آنے سے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال آن ایئر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ آمنہ اس کے لیے بہت سارے گفٹس لے کر آئی ہیں، اللہ، چھوٹے چھوٹے کلپس، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اللہ گڑیا، آمنہ کے برابر میں اس کا ایک بیگ رکھا ہوا ہے جس میں اس بچی کے لیے بہت سارے تحفے ہیں، اور آپ لوگ جو مدد کرتے ہیں سارم بنی ٹرسٹ کی، اگر وہ کلپس میں یہاں کھول کر دکھا دوں تو آپ دیکھیے گا وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ کتنے کے ہوں گے، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، آپ جو اتنا چھوٹا چھوٹا تحفہ بھی ہمارے ہاں بھیجتے ہیں سارم بنی ٹرسٹ میں، وہ کیسے خوشیاں بکھیرتا ہے، یہ صرف اس ماں کے ہاتھ اور اس کی آنکھیں جانتے ہیں۔ کیا کیا لائی ہو آمنہ؟ میں 1 سال سے نا یہاں چیزیں جمع کر رہی ہوگی کہ میں جب بھی بچوں کو چیزیں بانٹتی ہوں گی، یہ کوئی کلپ، کوئی گلے کا ہار، وہ چیزیں اٹھا لیتی ہوگی، میں کپڑے جب دیتی ہوں گی تو یہ اپنی بچی کے لیے، اور مجھے میری طرف سے کھلی اجازت ہوتی ہے، جو مائیں شیلٹر میں رہتی ہیں صرف انہیں نہیں، جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی ہیں، میرا ہاتھ مضبوط کیجئے، میں تو ان کو بھی بہت کھلے دل سے محبت سے سب چیزیں دیتی ہوں۔ آمنہ کیا کیا لائی ہو؟ کپڑے لائی ہوں، کھلونے لائی ہوں اس کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے کلپس وغیرہ لائی ہوں۔ پھر ہم بھابھی کے ہاتھ بھجوائیں گے، کسی کے ہاتھ بھجواؤ گے نا آپ اس کو؟ جی بالکل۔ اچھا اگر وہ دیکھ رہی ہو تو اس کو وش تو کر دو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اشبا۔ آئے گڑیا، تھوڑی دیر میں اس کو فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں، کم سے کم تم براہ راست اس کو وش تو کر دو نا سب کے ساتھ۔ ہم تمہارے ساتھ مل کے کیک کاٹ لیں گے، اس میں کیا ہو گیا۔ ایک ٹیڈی بیئر اس کے برابر میں جو رکھا ہوا ایک ٹیڈی بیئر مجھے یہاں سے بھی آدھا منہ نکالتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس کو فوکس کر لیں اگر تو وہ بچی کہیں سے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ہاں دکھاؤ دکھاؤ، میں یہ لے کر آئی ہوں۔ اللہ کیوٹ، سو سویٹ۔ بس جلدی سے رکھ دو، اب سے فون پہ لیتے ہیں، ابھی اس کو کوشش کرتے ہیں، کوئی نمبر بھابھی ضرور دیجیے گا۔ بھابھی آج آپ ایک فادرز ڈے ہے، پوری دنیا میں فادرز ڈے آج کا دن منایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک الگ ہی بات ہے کہ فادرز ڈے ہر دن ہوتا ہے، مدرز ڈے ہر دن ہوتا ہے۔ ہاں کچھ دن مخصوص کر دیے ہیں کہ اس دن زیادہ سیلیبریٹ کر لو۔ میرا نظریہ یہ ہے خوشی کا کوئی بھی دن ہو، منانے کا موقع اس کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ ایک جملہ بول دوں؟ بولیے۔ یتیمی کا دن زندگی میں ایک بار آتا ہے اور پھر یتیمی کا دن زندگی سے کبھی نہیں جاتا۔ ابھی مجھ سے زیادہ یہ کون جانتا ہے؟ اور یہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی نہیں جانتا جس نے بچپن میں باپ کو کھویا تھا۔ لیکن الحمدللہ میری ماں کو اللہ میاں زندگی صحت دے، اللہ پاک باپ بن کر، ماں بن کر، سولجر بن کر پالا ہے۔ میری ماں کو اللہ جوار رحمت میں دے، اسے اس کے درجات بلند کرے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری ماں نے تو وہ چٹان بن کر ہمیں پالا ہے کہ آج میں ہمیشہ فخر کیا، لیکن جانے کے بعد تو میں کہتی ہوں سر میرا فخر سے بلند ہے کہ ماں نے کیسا بہترین پالا، ایک باپ کیا 100 باپوں کے برابر کر کے پالا ہے مجھے اور میری سارے بہن بھائیوں کو۔ 4 اولادیں تھیں، چاروں بہترین جگہوں پر موجود ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں ان کو اللہ کبھی کبھی وہ مقام نہیں دیتا جو میرے بہن بھائیوں کو رب نے دیا، میری ماں کی محنت و مشقت۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن یتیمی جو میں اپنے شیلٹر ہوم میں دیکھتی ہوں، دیکھیے میں اپنے لیے تو پاکستان ایئر فورس کو بھی میں کہتی ہوں سلوٹ ہے، اللہ سلامت رکھے ہمارے سارے اداروں کو کہ پاکستان ایئر فورس نے یتیم ہونے کے بعد بھی ہمیں یوں سہارا دیا رکھا۔ ہم جوان بیٹیاں کیا بات ہے ہماری فورسز کی۔
میں نے پاکستان ایئر فورس کا جو شار فیصل بیس ہے، میں نے زندگی وہاں گزاری، اور میں نے انہی فوجیوں کے جو میرے باپ کے دوست تھے ان کے سائے میں نے وقت گزارا. لیکن سویلین میں وہ بچیاں جن کو گدھ کی طرح نوچنے کو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، جن کو پتا ہوتا ہے انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جب شیلٹر ہوم میں آتی ہیں ان کی یتیمی زندگی بھر نہیں جاتی. سالم صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے، جو باپ کے روپ میں کہتی ہوں میں کتنی بلیسڈ ہوں کہ مجھے رب نے ایسا محرم دیا کہ ہر جگہ سر فخر سے بلند ہوتا ہے. الحمدللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ ہم نے تو ایک یہ بھی اپیل کی ہوئی ہے، اور وہ سب لیگل ہم چیزوں پہ جا رہے ہیں، کہ جن لوگوں کے، جن بچوں کے جو ہم سڑک سے اٹھاتے ہیں یا کہیں سے بھی لے کر آتے ہیں، ماں باپ نہیں ہے، ان کے باپ کے کالم میں سالم برنی کا نام ڈالا جائے اور ماں کے کالم میں عالیہ سالم کا نام ڈالا جائے. ماشاءاللہ. بدر صاحب آج ہمارے ساتھ جو خاتون آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھابھی بتائیں گی آپ کو تھوڑی دیر بعد. لیکن واقعی میں ایک باپ کی جگہ، بڑے بھائی کی جگہ، پھر ایک شوہر اچھا ہو، پھر بیٹا آپ کی جو ہے وہ چٹان بنتا ہے. چاہے وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو، سب برابر ہوتے ہیں. لیکن واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک الحمدللہ پروردگار کا شکر ہے، ایک اچھا نیک شوہر بہت ساری مشکلات، بہت ساری دنیا کی جو انگلیاں اٹھتی ہیں نا، نظریں اٹھتی ہیں، جو باتیں اٹھتی ہیں، وہ آپ کا ایک شیلٹر ہوتا ہے. شیلٹر سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے اس وقفے کے بعد آپ کی ملاقات رہیں گی ایک اور بہن سے. رمضان اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے.
ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. لندن, پیرس, US میں مالو محل بنا لے, سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے. بالکل سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. ویری فنی. ایوانوں کو گرا دو. ہمیشہ حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور
मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं रमजान इश्क नशरियात 24 न्यूज़ HD पर बराह रास्त। हमारा कॉलिंग नंबर स्क्रीन पर आएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर किसी भी वजीफे के हवाले से सवाल करना चाहते हैं। अब तो मैं कहूँगी ऐसे वज़ाइफ पूछें कि जो शॉपिंग हम करना चाहते हैं, जिससे कपड़े बनवाना चाहते हैं, वो बन जाए, ठीक है। और जहाँ से हमने ईद से पहले जिन जिन के लिए तहाइफ लेने हैं, अल्लाह पाक वो गैब से जो है ना वो हमारी माली इमदाद कर दे और हम वो लोगों के लिए जो तहाइफ लेना चाहते हैं वो कर लें। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हम सारिम बनी वेलफेयर ट्रस्ट में ईद करें सबके साथ, तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे और वो हो जाएं। ऐसे अब ना मतलब के ना वजीफे करने वाली बात करते हैं, हम ज़रा अच्छी अच्छी चीज़ें वजीफे वाली करते हैं कि मोहब्बतें कायम रहें, ईद पर सब जो नाराज़ हैं वो मिल लें, जो हमसे दूर हैं वो हमारे पास आ जाएं, कहीं जाने सफ़र की तैयारी है तो वो कर लें। इस तरह की चीज़ों के वज़ाइफ ज़रूर पूछें कि अल्लाह पाक जो है पॉजिटिविटी के साथ हम सब की ज़िंदगियों को बेहतर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। भाभी सैफुल मुल्क मेरे साथ गई, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में आपको अब साथ ले जाऊंगी नहीं, अब तो ये जब तक देखें आप सब लोग गवाह रहिएगा कि मेरे बगैर गई थी, चाहे 7 साल बाद पहले गई हूँ, 14 साल पहले मेरे बगैर गई थी, बस खत्म हो गई बात। जैसे बच्चे नहीं कहते अपने अम्मी अब्बू को आपने अपनी शादी पे हमें क्यों नहीं बुलाया, ये बिल्कुल वो सिचुएशन थी। साहब को अल्लाह इतना मौका दे दे, टाइम दे दे कि वो हमारे साथ 10-15 दिन गुजार सकें। वो इतने अरे बल्कि सारे मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग कम से कम आखिरी जो अफ्तार है इस साल की वो साथ मिलकर अगर करें तो कितना अच्छा हो जाए। बहुत अच्छा हो जाए। मुझे तो एक लम्हा उनके साथ गुजारने को मिल जाए तो मेरी ईद हो जाती है। आए मुझे मालूम है, मैं उस पॉइंट पे आना नहीं चाहती, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर उसके बारे में बात करूंगी। भाभी आज जो खातून आईमी हैं उनकी क्या स्टोरी है, ज़रा बताइएगा। बात की थी हमने यतीमी की, मैंने कहा ना यतीमी की मोहर कुछ लोगों पर ऐसी लग जाती है बेचारे ज़िंदगी भर उस गम से नहीं निकल पाते। ये भी ऐसा ही एक केस है। 7 साल पहले रमज़ान था और रोज़े की हालत में अपने रिस्क पर जा रहे थे, वो चलाते थे, बस चलाते थे, गोलियां पड़ती हैं, इंतकाल कर जाते हैं। 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे जिसने गोली मारी उसको तो अल्लाह ही पूछेगा, नेक हिदायत दे तो बड़ी अच्छी बात, वरना रब इंसाफ करने वाला है। 3 बच्चों की ज़िंदगी उसने छीनी। उसने एक मर्द को नहीं मारा, 3 बच्चों के सर से साया छीना, एक औरत के सर से चादर चली गई, एक उस गोली की ये कीमत अदा हुई। आपके साथ आई हुई है क्या? जी मेरे साथ हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, यहीं फ्रंट रो में कहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बल्कीस है मैम। मैं आपको माया मैम को और सब आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ। कितनी पुरानी बात है आलिया भाभी हैं, सारन बर्नी ड्रेस हैं। ये 7 साल हो गए मेरे मियाँ रोजे की हालत में थे। वो रमजान में हुआ था ये वाकया? जी मैम, 20 रमजान को। अच्छा, मैं आपसे बल्कि साहब बाजी अभी आपसे बात करती हूँ, भाभी की बात कंप्लीट हो जाए जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ। मेरी बहन जी, भाभी आप बता रहे थे ये दुख तो चल ही रहा था, लेकिन दुनिया, मैंने कहा ना, कमज़ोर को सहारे के बजाय और गिराती है। और अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये इंसान इस वक्त कमज़ोरी में, इसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उस पर वो ज़र्ब लगाते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो एक सुकून है, ज़िंदगी चले और रोज़ मौत मिले तो बहुत अजियत है। 3 साल पहले इसका एक बेटा दूध लेने गया था, क्योंकि वही घर का बड़ा होगा, बाप तो है नहीं। वो क्या गया, वो भी लौट कर नहीं आया, वो अगवा कर लिया गया, गायब हो गया, कहीं चला गया, किसी ने बहका लिया, क्या किया ये किसी को नहीं मालूम। आज ये एक तो उस बंदे का गम मनाती है जो इस दुनिया से चला गया, और एक उस बच्चे का अफसोस इसके दिल में, उसको उसकी नजरें तलाश करती हैं, जो है तो दुनिया में कहीं, रब उसको सलामत रखे और मिलवा दे, जो रोज हर आहट पे देखती है कि शायद दरवाजे पे आज मेरा बच्चा होगा। हमारे पास भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरह इसको मिला दें। आज तक 3 साल हो गए नहीं मिला। अब इसके घर का चूल्हा जलता है, ऊपर अल्लाह है, नीचे सारिम बनी ट्रस्ट है,
सारिम बनी ट्रस्ट के पीछे बहुत सारे लोगों की कोशिशें हैं। इसके बच्चों की स्कूल की फीसें जाती हैं, वो भी इसी मद में जाती हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि चूल्हा जलाना एक काम है, बच्चों का मुस्तकबिल बनाना उससे भी ज्यादा अहम काम। चादर ढकी रहे एक काम है, पर्दा बरकरार रहे एक काम है, इज्जत ना सिर्फ उनकी बल्कि आपकी भी रहे बड़ा काम है। अगर आपके पास जो दो लोग भी आपका साथ दे रहे हैं इस काविश में, अगर खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह वो भी ना रहे तो चादर तो आपकी भी है ना भाभी। मैं तो खुद ये कहती हूँ, मैं मुस्तकिल एक बात कह रही हूँ कि मैं तो हजारों लाखों को समेट रही हूँ, लेकिन अगर मेरे हाथ कमजोर पड़े किसी भी वजह से, खुदा ना खास्ता अल्लाह ऐसा वक्त कभी ना लाए, लेकिन अगर कभी मैंने इसको ये कहा कि इस महीने तुम्हें राशन नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास राशन नहीं है, पैसे नहीं आए सारिम बनी ट्रस्ट में, लोगों ने नहीं भेजे, इसके दिल पर तो जो गुजरेगी सो गुजरेगी, जो मेरे दिल पर गुजरेगी वो मेरा खुदा जानता है। आप ईद की बात, खुशियों की बात कर रही थी, मैं चीजों को छुपाने की कायल इसलिए नहीं हूँ कि जब तक सच्चाई नहीं बताऊंगी पता कैसे चलेगा। एक साहब ने कहा कि ईद में, उन्होंने बहुत बड़े बजट के साथ मुझे कहा कि खाने की ये चीज भी होगी, ये चीज भी, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई ईद में जरूर लाइएगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम ईद की चीजों को कम करके बजट में लाके अगले 2 महीने तक भी इन चीजों को आगे बांट दें? बहुत, और क्या माया, लेकिन लोग ये सोचें कि बजट मैं बना रही हूँ, मेरा इदारा बना रहा है, हमें पता होता है कब कहाँ कितना खर्चा करना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक दिन में तो मैंने कोरमा भी खिला दूं, बिरयानी भी खिला दूं, पिछले पूरे महीने सिर्फ दाल और सब्जी पे गुजारा करवाऊं। मेरे पास इतना बहुतात नहीं है, मैं तो एक एक रुपए को पकड़ कर चल रही होती हूँ। भाभी इस वक्त कितनी बहन बेटियां हैं? 150 तो हमारे पास एक टर्नओवर रहता ही रहता है ओवरऑल। तो जिन्हें हम दिन मतलब कितने लोग होंगे? इतने ही लोग आप जहन में रखिए, 150-200 के करीब बिल्कुल होंगे। ठीक है, ताकि मैं कुछ अगर प्लान करना चाहूँ तो मैं मेरे जहन में हो, अगर आप लोग मेरे साथ देना चाहते हैं तो जरूर आगे बढ़िए, क्योंकि मैं भाभी और भाई के साथ हूँ इस मकसद में। मेरे जहन में एकदम से एक चीज आई करना कि मेरी ईद भी अच्छी गुजरे और ईद से पहले मुझे ये अंदाजा हो कि मेरे इदारे के चलाने के साल का नहीं तो 6 महीने का खर्चा तो अकाउंट में आ गया है इंशाअल्लाह ताला। वरना ईद में मैं मुस्कुराऊंगी। हाँ भाभी बोले, अम्मा बोलो। जब हम कहते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, शेल्टर होम के लिए आपको इमदाद चाहिए, लेकिन एक छोटी सी चीज़ भाभी जानती हैं कि हम हर किसी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये भी मुश्किल लगता है कि बच्चों को हमने गोद लेना है या अपने घर में ला के रखना है या किसी फैमिली को हमने सपोर्ट करना है। हम ये कर सकते हैं कि भाभी के पास जो लोग रह रहे हैं या जो बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा आप अडॉप्ट कर लीजिए या एक फैमिली का जिम्मा आप ले लीजिए, बच्चे फैमिली वहीं पे रहेगी, आपने महीने का खर्चा उनको पहुंचाना है। उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कितना है, उसकी तालीम है, उसकी ईद बकरीद है, खुशी है, सेहत है, सब कुछ ठीक है, वो खर्चा आपने उठाना है हर महीने के हिसाब से। और उम्मे राहील ने इस चीज में पहला कदम उठा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह ऐसे काम ये भी करती रहती हैं। और मैं रहमानी भाई से भी कहूँगी, सुफ़े के बाद कुछ सवाल करूँगी इस ब्रेक में। मुझे बताइएगा भाभी, अभी ये जो हमारी बहन है बिल्किस बाजी, इनका महीने का क्या खर्चा है? बहुत गिरी हालत में भी समझिए कि ये 15,000 10,000 से कम नहीं जाता, क्योंकि बच्चों की फीस है और किचन ये तो है ही, इसके अलावा ना माशाल्लाह अब दो हैं और उसके अलावा ये समझिएगा कि कोई भी नेकी नरमी है, कोई बीमार हो गया, कोई और ऐसा हादसा, कोई भी बात हो गई तो ऊपर खुदा नीचे ये इदारा है। तो अगर मैं इस तरह, आपकी इजाजत मैंने ली नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं ये बेहतर है वक्फे पे जाते हुए कि अगर फैमिली टू फैमिली भी लोग जिम्मेदारी आपके थ्रू उठा लें कि भाई आलिया भाभी ये हैं हम हर महीने के 20,000, हमने बिल्किस बाजी की कहानी सुनी थी, ये उनके हर महीने आपको पहुंच जाए करेंगे, ठीक है, या 6 महीने के आप एडवांस में ले लीजिए या 1 साल का आप रख लीजिए, ये आप बिल्किस बाजी को दे दीजिएगा हमारी तरफ से, क्योंकि हमें नजर आ गया कि खातून बेवा हैं, इनके हस्बैंड को जो है वो शहीद कर दिया गया 7 साल पहले, इनकी क्या वाकयात, इनकी क्या सिचुएशन थी और क्या हुआ इस वक्त? हमारे पास अगर 1 मिनट है, जी। हमारे पास आने का एक फायदा ये होता है कि हमारा इदारा क्योंकि 27 साल से काम कर रहा है, तो अल्लाह धोखे से बचाए, लेकिन हमें बहुत हद तक पता होता है क्या सही है क्या गलत है, कौन सी फैमिली रियल है कौन सी फेक है, तो हम आप लोगों को कम से कम सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं, फिर फैसला आप खुद कीजिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब हर दिल को तसल्ली होनी चाहिए, करने वाले को भी करवाने वाले को भी, ताकि आपका दिल भी मुतमईन हो और इनका दिल भी मुतमईन हो जाए। दिल खोल कर आप जितना, अब मैं कहती हूँ अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं मिलकर अच्छी खुशियाँ अपने घर वालों के साथ मनाएं, तो कम से कम हम किसी की जिंदगी में भी ऐसी खुशी ला सकते हैं। आइए इन लोगों की ईद को भी
دو والا کر دیتے ہیں سالم بنی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے مدد کر کر. اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے.
जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हमको ओवल के मैदान में शाहीनों की ऊंची उड़ान, फाइनल में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की भारत के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग, अजहर अली और फखर जमान की शानदार निस्फ सेंचुरियां, ओपनर्स पर किस्मत की देवी भी मेहरबान, 300 से जायद रन, सरफराज अहमद का टारगेट। लंदन में पाकिस्तानी शायकीन शाहीनों की फतह के लिए पुरजोश, पाकिस्तान में भी क्रिकेट के दीवानों की हर गेंद पर पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं। कोई प्रेशर नहीं, मैच जीतेंगे। हसन अली का मैच से पहले वालिदा को टेलीफोन, बेटा बहादुरी से खेलना, जीत का तोहफा देना, वालिदा की बेटे को तलकीन। गुड लक टू पाकिस्तानी टीम, आई होप कि हम ये मैच जरूर जीतेंगे। गुड लक पाकिस्तान। गुड लक पाकिस्तान, खेलो और जीत कर वापस आओ। गुड लक पाकिस्तान, खेलो और जीत कर पाकिस्तान आओ। राबी पीरजादा, आरिफ लोहार और दीगर फनकार जीत के लिए पुरअज़्म, पिशावर की लैला खान का शाहीनों की जीत के लिए गाना। बलोचिस्तान असम्बली मछली मंडी बन गई, नैबज़दा कहने पर खालिद लांगू तैश में आ गए। पश्तूनख्वा मैप के आगा लियाकत के साथ गालम गलोच का तबादला, नेशनल पार्टी का ऐवान से वॉकआउट। और मैनचेस्टर में ईद शॉपिंग में तेजी, 3 पीस शलवार कमीज, कुर्ते खुसे, ज्वेलरी और चूड़ियां पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उस 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से
जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ। हमारे मसूदी भाई, हमारे उलमा इकराम का सेगमेंट, लामा मसूदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मसूदी भाई, जज़ाकल्लाह खैर आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मसूदी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बस दुआ करते रहे, हम तस्वीर भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, आज का मैच है, पूरी कौम उम्मीद लगा के बैठी है टीम के साथ। ताख़रात भी है आने वाली इंशाल्लाह, उसमें पाकिस्तान को खुदावंद आलम इंशाल्लाह यहाँ पे भी कामयाब करेगा, इंशाल्लाह ऊपर भी कामयाब। अरे सुभान अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सुधी भाई, आपकी इजाज़त से थोड़ा सा आपको आगाह करती चलूँ। इस वक्फे से पहले एक हमारी यहाँ बहन आई हुई है जिनका नाम है बिल्किस। बिल्किस का जवेरिया, जब उनको बोलने की ज़रूरत है तो आप हेल्प कर दीजिएगा बेटिया, थैंक यू। इनके शौहर का कुछ सालों पहले वो उनको शूट कर दिया गया, वो घर से निकले थे और क्या दिन था, क्या वाक़या था और इनके बच्चे कैसे यतीम हुए, क्योंकि आज दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है वालिद के हवाले से। तो इनसे बात करना चाहूँगी बिल्किस बाजी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्किस बाजी, कितने साल पहले हो गए? 7 साल हो गए? जी मैम, ये 20 में रोजे 7 साल पूरे हो गए हैं उनको। अच्छा, पूरे 7 साल हुए हैं? जी, 20 रमजान को पूरे 7 साल हो गए। वो घर ड्राइवर थे, घर से ड्राइवरी के लिए हुआ क्या था, क्या वक्त था और किस लिए निकले थे? मैम, वो ड्यूटी पे जाने के लिए ड्राइवरी करते थे, गाड़ी चलाते थे, तो गाड़ी के लिए निकले थे। वो सुबह निकले थे, कोई रमज़ान का रोज़ा रख के 6:30 बजे के टाइम से घर से निकले हैं। तो वो फ़ोन मैंने लगाया तो फ़ोन नहीं लगा। कुछ देर बाद कॉल आई कि अनवर को गोलियां लग गई हैं, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मैया जिना हॉस्पिटल में पड़ी है। मेरे तो घर में वही छत थी, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चे, मेरा किराए का घर है, मेरा कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं 7 साल से भटक रही हूँ। ये सारन बरनी ड्रेस और आलिया भाभी जो है सारिम भाई हैं, इन्होंने कुछ साल पहले मैं इनके पास गई, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। मेरे यतीम बच्चे भूखे बैठे रहते थे, कोई खाना देने वाला नहीं था, इनको कोई देखने वाला नहीं था। जगह जगह जाती लोग बेइज्जत करते थे, तरह तरह की बातें करते थे। हम मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी पाकिस्तानी मदद नहीं करेंगे, ये यतीम बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? किसके पास जाऊं, किससे फरियाद करूं? मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। 4-5 माह से मेरे मकान का किराया चढ़ा हुआ है। मालिक मकान कहते मकान खाली करो, मैं इनको लेके कहाँ जाऊं? मैं किससे फरियाद करूं? मेरी माँ, भाभी लोग जो है, इनको खुदा तंदुरुस्ती दे, मदीने वाला हमेशा इनकी ड्रेस को और इनको सलामत रखे। वो मेरे बच्चों, क्या कहा आपने? मदीने वाला? आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। मदीने वाला हम सब की बनाए रखे, वाला आपको भी हमेशा तंदुरुस्ती अपने ईमान में रखे इंशाल्लाह ताला। मैं तो बेवा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है मैम, अल्लाह के सिवा, ना मेरा ना मेरे बच्चों का, मेरा ना अपना घर है ना कोई कमाने वाला। मैं खुद बीमार हूँ, ये देख मैंने खुद एक पेशेंट हूँ, दवाइयों पे चलती हूँ, बंगलों पे काम करती हूँ, जब ठीक होती हूँ तो कर लेती हूँ, जब बीमार होती हूँ तो नहीं होता मेरे से काम। मैं किससे फरियाद करूं? मैं उस मदीने वाले के सदके, माह रमजान के सदके आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कुछ ना करें बिल्किस बाजी, ना करें, हाथ ना जोड़ें। हाथ जोड़ने वाला बस रब के आगे जोड़े, बस और कुछ भी नहीं। इससे पहले कोई मजबूर इस हालत पर आ जाए कि आपके आगे हाथ जोड़े, उसके हाथ थाम लें, अल्लाह उसकी मुश्किल को हल कर दें। जवान बेटी साथ में बैठी है, अल्लाह इस बच्ची के सर पे इसकी माँ के साए को सलामत रखे।
मसूदी भाई, रमानी भाई, ये एक कहानी नहीं। सबसे अहम बात तो यहाँ पे ये है कि हमारे माशरे का ये एक बहुत बड़ा अब अलमिया है और एक दो का नहीं है, एक मुसलसल 30 साला ये मुश्किल हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में आई है। लेकिन अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि ये रियासत की एक जिम्मेदारी है, जब ये एक शोबा बन गया है कि इतनी ज़्यादा टारगेट किलिंग्स हुई हैं इस मुल्क में कि शायद दूसरा कोई मुल्क नहीं है, तो पूरा एक इदारा होना चाहिए। ये जो लोग बेचारे इस तरह से चले जाते हैं तो उनके लवाहिकीन, उनके वारिसीन, जाहिर सी बात है भी ये जिस तरह से बता रहे हैं कि किराए का घर है और वो किराए का मकान और उसका किराया देने को नहीं है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? ये खुद रियासत की जिम्मेदारी आती है। एक इदारा बनना चाहिए और वो इदारा जो है इस किस्म के लोगों को देखे जिसकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। और बहरहाल हम ये कहेंगे कि हम हर लिहाज से बहन के साथ हाजिर हैं, इसमें हमें जो भी खिदमत हम कर सकते हैं उसके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। रमानी भाई, बेटी है, बेटी बड़ी हो रही है, उनकी सेहत इस काबिल नहीं है। मैं यही मतलब देखिए ना, एक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वो बेहतरीन घर, आज लोग सुने कि बेहतरीन घर अल्लाह के नबी के नज़दीक कौन सा है और बुरा घर अल्लाह के नबी के नज़दीक कौन सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, जिस घर के अंदर यतीम की कफालत की जाती है, जिस घर के अंदर यतीम को खिलाया जाता है, मेरे आका कहते हैं वो बेहतरीन घर है। और वो बुरा घर है कि जिसमें यतीम को लेके जाया जाए और उसके साथ बदतमीजी की जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बेसल बैत, वो बुरा घर है। और फरमाया अच्छा घर वो है, अच्छा आदमी वो है जो यतीम के सर पर हाथ रखता है जब तुम्हारा दिल गुनाहों से सख्त हो जाए, जब तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, तो तुम्हें चाहिए तुम यतीम के साथ रहो। तुम यतीम के साथ रहोगे, अल्लाह उस यतीम की वजह से तुम्हारे दिल की सख्ती को दूर फरमा देगा। क्या मैं यही अर्ज कर रहा था, बहुत अच्छी बात की है हमारे भाई ने। एक वाकया मुझे यहाँ याद आ गया इसी हवाले से, जैसे मैंने बच्चों को देखा तो एक ज़माने में एक आले सादात में से थी, सैयदादी थी और उसके शौहर का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया तो उससे अपने शहर में रहा नहीं गया, क्योंकि वो कसमा पुरसी पहले अच्छी हालत थी, अब जब शौहर नहीं रहा तो आहिस्ते आहिस्ते हालत बहुत अबतर हो गई। और वो किसी के आगे अपने गाँव में, अपने देहात में दस्ते दराज को सवाल भी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन उसके बावजूद क्या है, फिर उसने वो शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर में गई और वहाँ जा कर के उसने तलब किया। तो एक मुसलमान के घर में, अफसोस होता है हमें अपने कल्चर को देख करके कि एक मुसलमान के घर पे जो बहुत कार खैर भी करते थे, तो वहाँ जा कर के उसने अपना सवाल रखा। और सवाल जब रखा तो फिर उसने एक चीज़ सनद मांग ली कि तुम सैयद हो, कि तुम सैयदादी हो, तो कोई सनद है तुम्हारे पास, कोई वो नामा है, कोई नसब है, कोई हसब है, उसकी शजरा है तुम्हारे पास? तो उसने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है ऐसा। तो उसने इमदाद नहीं की। थोड़ा सा आगे एक और यहूदी रहता था, उसके दरवाजे पे गई और उसने कहा मैं नबी की आल से हूँ, नबी के रसूल की बेटियों की बेटी हूँ, तो मेरी कुछ इमदाद कर दीजिए। उसने घर में अपने बिठाया, इज़्ज़त से बच्चों को खाना खिलाया। देखा उसने कि बच्चों की हालत ऐसी नहीं है कि वो यानी उनको छोड़ा जाए, बल्कि उनको खाने का एहतमाम करवाया। वो सारी चीज़ों के साथ उसने फिर रात को बिस्तर लगवाया कि आप हमारे घर में आराम फरमाएं। जब सुबह हुई तो सुबह ही सुबह वो मुसलमान अब जो था वो सुबह इसके दरवाजे पे आया और दरवाज़ा खटखटा के उसने पूछा बाहर निकलने के बाद कि वो रात को एक मुसाफिर आए थे, वो कहाँ गए? कहा वो यहूदी के घर पे हैं। तो वो वहाँ पर आ गए और उसने आके उसका दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाने के बाद उसने कहा कि वो आपके घर कुछ रात को मेहमान आए। उसने कहा हाँ मेरे पास मेहमान आए। कहा वो मेहमान मुझे दे दे। इतना खूबसूरत यहाँ पर जुमला है, अल्लाह अकबर, कि अब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि क्यों? कहा नहीं वो मेरे रसूल का। कहा तुम ख्वाब में तुम्हारे रसूल ने आकर के जो तुम्हें खबर दी है ना, हमें बता दिया कि जब आखिरत में रिसालत माब ने उससे पूछा कि उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी बख्शिश का एहतमाम कीजिए। तो उस वक्त रसूल अल्लाह ने कहा कि कोई नामा है तुम्हारे पास? कोई नामा लेके आए हो कि तुम मुसलमान हो? बस वो घड़ी थी। और इधर आकर के फिर यहूदी कहता है मैं तो रात तक यहूदी था, सुबह तो मैं ख्वाब में जब मुझे आकर के उन्होंने कहा कि तुम्हें हम बख्शिश कराएंगे तो मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, अब कैसे दे दूँ? तुम देख करके हैं सौदा कर रहा हो। मैंने सौदा जो है वो देखे किया था और वो पाया है
کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نہیں ملتا ہے. تو یا یہ تو اللہ میں اکبر. سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس درد کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ایک امتی ہو, ایک رسول کی حال ہو, کوئی بھی ہو, ایک بیوہ ہے, ایک پریشان حال ہے, اس کو ہم نے کتنا مقام و مرتبہ رسول نے عطا کیا ان لوگوں کو, جو ان لوگوں کی سیوا کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, ان کی اہتمام کرتے ہیں. بچوں کی تعلیم کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے یہ تو بھوک تو پھر میں کہوں گا کہ گزر جائے گی شاید یہ جس طرح سے, لیکن ان بچوں کی تعلیم اور اس کے لیے جو بھی میں نے پہلے عرض کر دیا, آپ کے پاس ایڈریس ہوگا, اگر میں کسی بھی کام آ سکتا ہوں تو بالکل ہم آئیں. ابھی جب آپ نے واقعہ سنایا ہے, میری ایک دم سے جیسے آپ نے وہ بات کہی ہے, مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرے ایک میرا رونگٹا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا, میری حالت عجیب ہو گئی ہے. ہم دیکھ کر, ہم جان کر نہیں سمجھ رہے, یا اللہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گی. منہ پھیر لیا تو اس سے پتا ہے اللہ اکبر. ایسا ہو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے منہ پھیر لیں. میرے پاس کوئی بھی آتا ہے, میں اس نہیں وقت کے پوچھتی بعد تم حاضر کون ہوتے ہو. ہیں. پلیز کال کیجئے اور بتائیے کہ میری بلقیس باجی کے بچوں کے سر پر اور ان کے سر پر کون ہاتھ رکھتا ہے شفقت پر. پلیز حاضر ہوئیے. جزاک اللہ مسلم بھائی. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
सुनते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। रमज़ान नशियात में आपको एक बार फिर करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है माजरत, गला काफ़ी ज़्यादा बोल बोल के जो है वो खराश और सब कुछ हो गया है, लेकिन आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो बहुत हिम्मत देता है और फिर आप लोगों की मोहब्बत में हम सब हाजिर हो जाते हैं। इस वफ़े से पहले जिन लोगों ने हमें नहीं देखा, हम उनको बताते चलें कि यहाँ पर बिल्किस बाजी अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद हैं जिनकी कफालत सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है। अब चूंकि इदारे में जगह इतनी नहीं रही है कि अब और लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, तो अब भाभी और सारिम भाई जो घर में हैं, जिनका किराया है, जिनके 2 बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, इनका राशन है, क्योंकि तालीम का अलग खर्चा उठाना अलग खर्चा है और घर का जो राशन है वो मुझसे भाई अलग है, वो दोनों मिला के जो एक बनता है वो तकरीबन 20-22 तकरीबन निकल आता है कि कम से कम भी खींच के भी 18 से 20 हो ही जाता है। भाभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बहन मेरी बहुत मजबूर हैं, इनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि ये कोई काम करें, घरों में काम करती हैं, जब तबीयत ख़राब होती है तो बैठ जाती हैं, ज़ाहिर है कैसे जाएंगी, बच्ची बड़ी हो रही है। वक्फे से पहले इतना बड़ा एक वाक़या ऐसा सुनाया मसूदी भाई ने कि रोंगटे खड़े हो गए
اور ہم یہاں پر بریک میں یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح بھی ہو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں. نمبرز چاہیں، ادارے کا نمبر چاہیں، مسعودی بھائی رحمانی بھائی کا نمبر چاہیں، جس حوالے سے صحت کے حوالے سے میں آپ کو کہتی ہوں، میں ان دونوں پہ اتنا زیادہ میرا الحمدللہ ٹرسٹ ہے کہ میں آپ کو کہتی ہوں آپ صحت کے لیے رحمانی بھائی کے پاس جائیں کیونکہ یہ حکیم بھی ہیں. آپ مدد کے لیے میں کہتی ہوں مسعودی بھائی ہیں. جس طرح کی راشن کا ہے، بچوں کی پڑھائی کا ہے، لیکن الحمدللہ شاید آج واقعی دل سے پکارا کہ راول پنڈی سے ایک کالر آئے، بھائی میرے میں نہیں جانتی وہ کون ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، فون پر وہ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ. تو میں آن ایئر مجھے ایک کارڈ مل جائے تو میں ڈونیشن کے لیے نمبر بتا دوں. آپ صرف ٹیم کو بتا دیجئے گا، بھائی یا میری بہن جو بھی کال کرنا چاہتا ہے صرف ٹیم کو بتا دیجئے تاکہ جب اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو تو ہم چیک کر کے آپ کو فالو اپ بتا دیں کہ آپ کی جو امانت تھی وہ پہنچ چکی ہے. آپ یقین کریں، میں مسعودی بھائی رحمانی بھائی کو بات بتانا چاہتی ہوں، بھابھی تو خیر ساتھ ہی گواہ تھی، امی نے بھی دیکھا ہوگا، جب جس نے پیسے بھجوائے ہیں، بالفرض کریں مسعودی بھائی نے پیسے بھجوائے، آپ نے پیسے بھجوائے، جن کے لیے بھجوائے آپ لوگوں کا نام لے کر ان کی امانت ان تک پہنچا دی کہ آپ نے بھیجے تھے، آپ کی امانت وہاں چلی گئی. ایسے نہ جانے کتنی بچیوں کی شادیاں آپ سب لوگوں نے کرائی ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا ہم سیٹ دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے کہا ہم فریج دینا چاہتے ہیں، آپ نے کہا ہم مائکرو ویو دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے کہا ہم چادر کمبل وغیرہ دینا چاہتے ہیں. آپ لوگ کی امانت پہلے بھی تو پہنچی ہیں، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ عید آ رہی ہے، پلیز ہم کیسے عید منا سکتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ پتہ نہیں ان کے گھر میں بچوں نے نئے کپڑے پہنے بھی ہوں گے کہ نہیں، کیونکہ بھابھی کتنے چیزوں کا کر رہی ہیں، کفالت بھی تو ہو رہی ہے، روٹی، سالن، آٹا، دال اور بچوں کے اسکول. اس کے علاوہ بھی مایا بیماری، ایک چیز آپ کے ذہن میں اور ڈال دوں کہ ایک جو بیماری جو کینسر پیشنٹس ہیں، کل ایک بندے کا ہم نے کچھ ارینج کیا پیسوں کا، تو ہم نے یہیں بیٹھ کر اس کو کال کیا کہ کچھ اہتمام ہو رہا ہے، فوراً آ کے کانٹیکٹ کرو اور مغرب کے بعد آفس پہنچنا. کہنے لگے مغرب کے بعد کون آئے گا، ظہر میں تو اس کی تدفین ہو گئی. اللہ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بہت دل کو دکھاتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. کیا چیزیں جیسے انہوں نے بھی سنائی بات تو اس سے دل بہت بڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ روز آخرت ہمارے ساتھ بھی اچھے معاملات کرنا، کہ ہم دل کو تو وسیع رکھتے ہیں، چاہے ہاتھ میں ہے نہیں دل کو ہم وسیع، لیکن جب اس طرح کے حالات سے خیر الناس من ينفع الناس، اللہ اکبر، لیکن بہترین انسان وہی ہے خدا کی نظر میں جو بندوں کے لیے بہترین، جو بندوں کے کام آ رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ خدا کی بارگاہ میں بہت بلند. بلکہ بھائی بیٹی کو مائک دیجیے گا، بیٹی کو مائک دیجیے، بیٹی کو مائک دیجیے. السلام علیکم گڑیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اسکول جاتی ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں بیٹا؟ 8. ارے ماشاءاللہ 8 پہ پہنچ گئی ہیں آپ. جی. کیا بننے کا ارادہ ہے ہماری بچی کا؟ ڈاکٹر بنے گی گڑیا انشاءاللہ، انشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ عید پر کیا چاہیے؟ عید پہ جو کچھ بھی مل جائے. جو کچھ نہیں، اپنی خواہش بتاؤ، اپنی خواہش بتاؤ. اللہ پاک سے مانگو، دینے والا رب کی ذات ہے. دل کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہیے؟ کپڑے وغیرہ. ٹھیک ہے، کس رنگ کے کپڑے چاہیے؟ پنک کلر کے. سوچو، میں آپ کی جیسے ذرا بچی کے پاس میں تم سے، ہاں پنک کلر کے. شلوار قمیص چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سوچو مجھے بتاؤ. کرتی چاہیے. کرتی چاہیے. کیسی کرتی ہو؟ کرتی پہ رنگ کیسے ہو؟ کرتی پر کڑھائی کیسی ہو؟ دوپٹہ کس رنگ کا چاہیے؟ دوپٹہ پنک کلر کا، چنٹوں والا. چنوں والا دوپٹہ چاہیے اور کرتا چاہیے، اور ساتھ میں میچنگ کی شلوار چاہیے، وائٹ چاہیے، بلیک چاہیے، کیا چاہیے؟ میچنگ کی. چوڑیاں کس رنگ کی چاہیے؟ چوڑیاں بھی پنک کی. پنک چاہیے. مہندی لگانی ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اور کچھ کانوں میں پہننے کے لیے چاہیے؟ نہیں، بس چوڑیاں چاہیے اور کپڑے چاہیے. اور جوتے؟ جوتے چاہیے. سینڈل چاہیے. جوتے کا نمبر کیا ہے؟ میرا 6. ہاں 6 ہے. ٹھیک ہے. بھائی کو مائک دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ منیب. منیب. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4 میں پڑھتے ہیں. آپ کو عید پہ کیا چاہیے؟ کپڑے چاہیے. گڈے. کس طرح کے، کس کلر کے چاہیے شلوار قمیص؟ بلیک. بلیک میں چاہیے، جیسے کہ ابھی پہنے ہوئے ایسے چاہیے. اچھا شوز کیسے چاہیے؟
सैंडल चाहिए। सैंडल चाहिए? पेशावरी वाली सैंडल चाहिए? अच्छा, किस में चाहिए? ब्लैक में, ब्राउन में? छोटी सी ख्वाहिशात। ब्लैक में चाहिए। अच्छा, और कुछ चाहिए ईद पर? कि हमने मांगना है। नहीं, ठीक है। क्या इतनी बड़ी ख्वाहिश कर दी इन बच्चों ने? अल्लाह, क्या चांद मांग लिया, गाड़ी मांग ली, मोबाइल मांग लिया? नहीं, इसलिए पूछना चाह रही थी कि पूछूं क्या चाहिए ईद पर? कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए। क्या 2 जोड़ी कपड़ा नहीं दे सकते हम? अल्लाह, पिंक शलवार कमीज ही तो मांग रही है गुड़िया। गुलाबी दुपट्टा चुनो वाला। हमारा एक रंग एक नंबर से आगे पीछे हो जाता है, हम वापस छोड़ के आ जाते हैं, रंग आपने मैचिंग का नहीं किया। चप्पल यहाँ तो अच्छे मिलते ही नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर का जूता चाहिए, उसने ये नहीं कहा मुझे इस ब्रांड का कुर्ता चाहिए, उसने मुझे कहा मुझे गुलाबी सूट चाहिए। भाई ने कहा मुझे काला शलवार कमीज चाहिए। अब देखिए रब ताला ने आपको कितना ब्लेस्ड किया है। मैं दावे से कह सकती हूँ, इस भरोसे से कह सकती हूँ, रब की जात पर मुझे भरोसा है, इन बच्चों का आने वाला जो ये टाइम और ईद है बहुत अच्छी होने वाली है। ये मेरा ईमान है इंशाअल्लाह, ये मेरा ईमान है इंशाअल्लाह। भाभी के इदारे में ऐसे बहुत से बच्चे हैं। भाभी बच्चियां कितनी हैं और बच्चे कितने हैं? अंदाजन 50-70 इस तरह से 50-70 हैं। और इनकी नानियां दादियां भी आए, उन्हें भी हम ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल। मैं ताकि सबका सोच रही हूँ साथ साथ के इनका हम शुरू करेंगे, कहीं से तो शुरुआत करनी है। गुलाबी कुर्ता, गुलाबी ट्राउजर, चुना हुआ दुपट्टा, चूड़ियां भी गुलाबी, सैंडल चाहिए इस हमारी बच्ची को। इसके भाई को काला शलवार कमीज चाहिए, जैसा पहना हुआ है वैसा ही मांग रहा है, कुछ नया नहीं मांग रहा। हमारे घर में बेटी की जब आमद होती है तो हम पूरे कमरे को पेंट कर देते हैं गुलाबी, सारी बेडशीट्स आ जाती हैं गुलाबी। अल्लाह सलामत रखे उनके लोगों को, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इनका निकालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मत झिझकिए, आज जो थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी है ना करें, ना करें। इस फैमिली के लिए इनकी ईद कर दें। क्या पता इनकी ईद के सदके से हमारी जिंदगी का हर दिन ईद बन जाए। मेरे मानी भाई और मसूदी भाई से कहूंगी कि कुछ मैसेज देते हुए जाइए, ताकि आज तमाम फैमिलीज जो सारे मनी वेलफेयर ट्रस्ट में हैं उनकी ईद हो जाए वाकई में। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि मेरी इबादत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। तीसरी जो बात की, वह आतल माल अला हुब्बी, जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है वो अपने अजीज़ व क़रीब में या फिर यतीमों पर खर्च करोगे। जब तुम यतीमों पर खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत देगा। तुम किसी यतीम बच्चे, किसी यतीम फैमिली को के सहारा बनोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी औलाद से बीमारियों को दूर कर देगा, तुम्हारी औलाद से परेशानियों को दूर कर देगा, तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल अल्लाह इतना रोशन कर देगा तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। यहाँ से तकलीफ चली जाएंगी, लड़ाई झगड़ा खत्म, क्योंकि रहमत के फरिश्ते सुबह शाम नाजिल होंगे। मदीने वाले की निगाह करम तुम पर होगी, नजफ से तुम पर निगाह करम होगी, करबला से तुम पर निगाह करम होगी, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम तुम पर होगी, अल्लाह की रहमत खास तुम पर नाजिल होगी। तो ऐसी फैमिलियों का हिस्सा बन जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का मरकज तुम्हारा घर बन जाएगा। सुभान अल्लाह। बस मैं तो यही कहूँगा इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखिए, यतीम के सर पे हाथ फेरता है, सिर्फ हाथ फेरना, उसकी किफ़ालत का अजर मैं नहीं बयान कर रहा हूँ। तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने एक यतीम के सर पे हाथ फेरा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जो किफ़ालत करेगा उसका मुकाम और मर्तबा क्या होगा। और यकीनी तौर पे इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि देखिए, अगर आप अपना माल, जिस हवाले से उन्होंने कहा, आप अगर अपना माल बढ़ाना भी चाहते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, जितना राह खुदा में देंगे
वो 10 गुना वापस लौटा देगा। आप 1 जोड़ा दे रहे हैं, उस बैंक आपको 9 का बेनिफिट आएगा आपके बच्चों के लिए। कभी ये ना सोचें कि मेरे बच्चों का कम हो जाएगा, मेरी फैमिली का पैसा कम हो जाएगा। नहीं, आप जितना राह खुदा में देंगे 1 के बदले में 10 मिलेगा आपको। तो अगर ये भी शौक़ है इंसान को कि आगे जाने का, तो फिर, और मैं बस ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आले रसूल को देखना है तो दिन में वो कस्ब माश करते थे, रात को वो खैरात करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रात शहर में जा के घर पर पहुंचते थे और दरवाजे पे जाके रिस्क पहुंचा के आते थे। ये तमाम आइम्मा की तारीख है कि उनकी पुष्ट पर निशान होता था कि बोझ भी खुद उठा के ले जाते थे, किसी को शरीक भी नहीं करते थे, किसी गुलाम को भी साथ नहीं लेते थे, इतनी खामोशी से जाते थे और दे के आते थे। शायद ऐसी ही खामोशी से मेरे एक भाई ने कॉल किया रावलपिंडी से, ना नाम बताया ना फ़ोन पर आना चाहा। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। बस ये है कि आपने जो नेकी की है ना, आप ये दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमें भी ऐसे नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। भाइयों का बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होती है। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान इश्क में आगे बढ़ेंगे। हमारी आज एक बहन आमना 2 दिन पहले आई थी, अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही है, लेकिन आज आमना की बेटी की सालगिरह है। हमें कहा चलो बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ मिलकर ज़रूर मनाएंगे। वो अपने बेटी के लिए तोहफे भी लाई है, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है उसमें सब्र करना चाहिए। आइए इस अशियात को आगे बढ़ाते हैं इस वक्फे के बाद। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम
तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। टीम ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आमना के साथ हम उनकी बेटी के मोहब्बत में केक कब काटेंगे, ये मुझे ज़रूर बता दीजिएगा क्योंकि आज हम ज़रा सा उम्मीद हुई है बिल्किस बाजी की भी फैमिली और उनके बच्चों के हवाले से, तो दिल खोल कर भेजिए ताकि पता नहीं किस किस की। देखिए जब एक इदारे में आप भेजते हैं ना तो उस इदारा ऑलरेडी बहुत सारी शाखों को, चीज़ों को, केसेस को, फैमिलीज़ को हैंडल कर रहा होता है, करेक्ट। अब जब वो कर रहे होते हैं तो वो अपने हिसाब से देख भी रहे होते हैं कि जी इनका भी हो जाए, इनका भी हो जाए, इनका भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो जाए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक बॉक्स में डालें और उस बॉक्स से जो है वो सबकी मदद जो है वो गाहे बगाहे होती चली जाए। ईद से पहले कोशिश कीजिए कि आपके और मेरे अलावा भी मुस्तहिक जो लोग हैं वो ईद मना सकें।
मदिहा देखा उसका पिंक सूट और शलवार कमीज की जो बच्चों की ख्वाहिश होती है ना, छोटी-छोटी। और बच्चों की वो छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और पूरी करनी चाहिए, मेरा ख्याल ये है ना। हम लोग जब वंस वी ग्रो अप, हम बड़े हो जाते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों की ख्वाहिशें अगर उनका दिल बचपन से हम तोड़ेंगे ना या कोई बात नहीं मानेंगे तो फिर वो आगे जाके फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, और फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं हमारी कंट्री के। मैं हमेशा से बड़ी ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे टीम भी ऐसी ही मिली है, रात से नहीं, जब से मैं बल्कि मॉर्निंग शो से जब से सिलसिला शुरू हुआ, जब से टीम ऐसी ही मिली है कि माशाल्लाह टीम से ही सब आगे बढ़ जाते हैं, कदम उठाते हैं। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम आज आगे बढ़ी है, और इन बच्चों की जो ईद के जो कपड़े हैं और जूते हैं उनका इंतज़ाम हो गया है। और वो जिस तरह वहाँ रो रही थी ना, नहीं माम बताइए नहीं भाभी। एक बात और बताइए कि सिर्फ ये 2 बच्चे नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे वही तो मैं कह रही हूँ। तब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, और जो बच्चियाँ और बच्चे इस वक्त भाभी के साथ रह रहे हैं उनके लिए देखिए, बच्चियां हैं उनको पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, जो है पीच कलर, इस तरह के कपड़े उनको पसंद हैं। चूड़ियां हैं, आप अपने देखिए हर एक का एक अपना एक चादर होती है, वहाँ तक हम पाँव फैला सकते हैं, या इतना हमारी गुंजाइश होती है हम कर सकते हैं। अपनी गुंजाइश से ज़्यादा नहीं, लेकिन अपनी गुंजाइश के अंदर रहते हुए आप जो कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर हिम्मत है ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर भी चाहते हैं उनकी मदद करना, तो जो मैं कहती हूँ 1 रुपया भी होगा वो भी समंदर में एक ड्रॉप के बराबर होगा, और कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है। शेल्टर की जो ज़रूरत होती है, मैं हमेशा कहती हूँ मुझसे पूछ लिया करें, क्योंकि वहाँ रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बाज़ लोग बड़े अच्छे दिल से प्योर कपड़े भेज देते हैं। जो ख़वातीन सुन रही है उनको मालूम है कि प्योर सिर्फ ड्राई क्लीन होता है, ठीक है। अब जो शेल्टर की हालत में रह रहा है, अगर आपने उसको बहुत महंगा 4000 का 3000 का जोड़ा भेजा, वो उसके काम नहीं आ सकता। अल्लाह, उस पर क्योंकि लिखा होता है वो सिर्फ ड्राई क्लीन हो सकता है, वरना वो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्योर तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन होता बहुत नाजुक है। इसी तरह अगर कोई जॉर्जेट भेजेगा वहां पे, वो भी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां गर्मी बहुत है, वहां तो सीमेंट की छतें हैं, वहां कपड़ा लॉन चलता है, लॉन चलता है, वहाँ सिर्फ लॉन चलता है। ठीक है, लॉन अगर महंगी भी हो तब भी सही है, महंगी भी ठीक है और सस्ती भी ठीक है। लेकिन आप क्योंकि वहाँ पे कपड़े धुलते हैं, ड्राई क्लीन के पैसे नहीं है हमारे पास। नहीं है। मैंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा बोलते हुए, मैं जानती हूँ इतने सालों से। अगर हम मनाना चाहें तो अली हम मना सकते हैं उनकी अभी बर्थडे। सुमेरा केक आ गया है, चलो। बच्ची का नाम क्या है? आमना की? आमना से पूछते हैं। आमना के पास माइक लेके जाइए बेटा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आमना, बेटी का नाम क्या है? अशफा। अशफा कितने साल की हो रही है वो? 4 साल की हो गई है। 4 साल की आज हो गई है? अच्छा माशाल्लाह। तो आज है 18 जून ना जी। 18 जून को पैदा हुई थी जी, 4 साल पहले जी। अल्लाह स्वीट। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं कि आमना जब आई थी तो उन्होंने क्या कहा था। हमारी ये बहन आई आमना, जो अपनी बेटी से मिलने की अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको भाभी ने, परवरदिगार ने जरिया बनाया इनकी ज़िंदगी में कि इनकी मुलाकात अपनी बच्ची से होना शुरू हो गई, जिसकी 2 दिन बाद 18 जून को सालगिरह है, 4 साल की हो जाएगी। एक काम करें ना भाभी, आपसे गुजारिश मेरे भाइयों की इजाज़त से, कि अगर वो बच्ची हमारे साथ आकर उस दिन अपनी माँ के साथ आके ट्रांसमिशन में अपनी सालगिरह मनाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। जज़ाकल्लाह खैर। और अल्लाह पाक ने चाहा तो कल इंशाल्लाह हम उस बहन की, उस बेटी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जिसको शायद वक्त और हालात ने उससे जुदा कर दिया है। आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, हम से भी कोशिश करते हैं। और ये क्या क्या माशाल्लाह, ये तो गिफ्ट्स आए भाई। क्या क्या आए बताओ सबको, ताकि वो अशफा जो है, अशफा ना, अशबा, अशबा, अशबा नाम किसे रखा था अशबा का? मेरी सास का। सास ने रखा था? अच्छा चलो, अगर अशबा भी देख रही हो, पहले मैं केक मंगाऊंगी। मैं कहूँगी और कोई आए हुआ है, हसान भाई, रेहान भाई वगैरह में से अभी तक कोई पहुँचा है? अच्छा ठीक है, वो नहीं पहुँचे हैं तो हम केक तो भिजवा दीजिए ताकि हम मिलकर केक काट लें। हाँ, केक आ रहा है। और मुझे बताओ क्या क्या लाई हो, डॉक्टर साहब को बताओ, मदिया को, भाभी को तो खैर पता है, जवेरिया को भी बुलाइए, जवेरिया को भेजिए जी। पेड़ लाई हूँ, हैप्पी बर्थडे। बड़ा प्यारा है भाई, अशबा जैसा है। और क्या लाई हो? फ्रॉक्स लाई हूँ। अल्लाह कितना क्यूट फ्रॉक है माशाल्लाह, इस पर एंजल्स बने भाई, छोटे छोटे एंजल्स बने हुए हैं। अल्लाह। अच्छा, ऐसे कोशिश किया करो
کہ تصویریں اور چہروں والے جو نا کپڑے دیں گے بچی کو بس انشاءاللہ. آگے تو ابھی تو چھوٹی ہے. ارے بھائی واہ زبردست بات ہوگی. تو پیارا فراک ہے یہ تو. لے آؤ بھائی. اور کیا لائی ہو دکھاؤ ہمیں تاکہ ہم دیکھیں بھائی. یہاں کھڑی ہوں میں ذرا وہ لے کر آؤں ایک پلیٹ وغیرہ بھی لے کر آتی ہوں. وائٹ اینڈ پنک. پنک کلر بیٹیوں کی بیٹیوں کمزوری. کے لیے پکا ہے. ذرا جیولری تو ہم کھولیں وہ کون سی پیاری پیاری. اور کیا چیزیں ہیں بھائی. پکڑو 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 بھائی مجھ کو پکڑو جلدی سے. مائک رکھیے اس کے پاس. Happy birthday to you. Happy birthday to you. آنا بیٹی سے ملے. پکڑے پکڑے پکڑ پکڑائی کھیلے. پکڑ پکڑائی کھیلے. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اماں. قرآن عشق ہے. نبی عشق ہے. رمضان عشق ہے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اشبا. ارے واہ 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 ماشاء اللہ. ہم تو اشبا کی سالگرہ آپ سب کے ساتھ منانے والے ہیں اور اس وقفے کے بعد ہم اشبا کا برتھ ڈے کیک کاٹیں گے انشاءاللہ.